Good morning, dear students. So, as in the last lecture, we have discussed about the numericals related to the rate of reaction. We have till now studies about the rate of reaction and the related numerical portion. So, today we will discuss about the next very important topic of the chapter, that is factors affecting rate of reactions. Here I have written some of the factors on which we will discuss just the overview, and afterwards we will discuss about the these factors in detail. Okay, but today we will discuss about the concentration term basically. Okay, so here I have written 6 factors on which the rate of reaction depends, that is concentration, temperature, surface area, catalyst, nature of reactant and exposure to radiation. So the first term is the concentration term on which the rate of reaction depends. So basically what we observe, that on increase the concentration, increase the concentrations of the reacting species, reacting species, rate of reaction increases. हम देखते हैं कि जैसे हम रिएक्टिंग स्पीसीज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है. Why it is so? Because basically we see for a chemical reaction to be occur, there are number of collisions responsible for that. The effective collisions are responsible. So as we are gonna increase concentration of the reacting species, the number of collision increases. That's why the rate of reaction will be increase. तो जितना ज़्यादा collision होंगे reacting species के बीच में, उतना ही ज़्यादा rate of reaction बढ़ जाएगा. The next term is temperature. Again the same thing. When we are increasing the temperature for a particular reaction, the number of molecules, reacting species, they get the kinetic energy, they move fast, they collide, and the rate of reaction further increases. So basically experimentally it has been observed that every 10 degree rise in temperature, rate of reaction got डबल्ड. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि जैसे जैसे हम 10 डिग्री जैसे ही राइज होता है टेम्परेचर, उस पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाता है, डबल हो जाता है. द नेक्स्ट इज द सरफेस एरिया. व्हाट वी सी, द मोर द सरफेस एरिया, ठीक है, द मोर द सरफेस एरिया आइदर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज और द कैटलिस्ट ऑन विच द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, है ना, एड्सॉर्प्शन में पढ़ा था हमने सरफेस केमिस्ट्री में. ठीक है, तो कैटलिस्ट अगर सॉलिड है ना, या फिर हमारा जो रिएक्टिंग स्पीसीज है उनमें से वो सॉलिड है, तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है. तो द मोर द सरफेस एरिया, मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन. It can be understood with the help of one example. एक रिएक्शन जो आप शुरू से पढ़ते हैं, that how to prepare hydrogen in lab. ठीक है, in lab we prepare hydrogen with the help of this reaction, zinc plus H2SO4 रिएक्शन आपको याद होगी, ZnSO4 plus hydrogen. लैब में प्रिपेयर करते हैं. सो इफ यू रिमेंबर, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात कर रहे हैं, बट हम बात कर रहे हैं यहाँ सरफेस एरिया की. तो जिंक आप लंप में ना लेके, पीस में ना लेके, किस फॉर्म में लेते हैं, ग्रेन्युलर फॉर्म में लेते हैं. Why it is so? Because in the granular form, the surface area of the zinc would be increased, by which the rate of reaction increases. Clear? So now let's see the catalyst. Generally, what is being observed, that in presence of catalyst, the rate of reaction increases. Basically जो हमारी रिएक्शन स्लो होती हैं उसको फास्ट करने के लिए नहीं तो हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं. तो जनरली हम क्या देखते हैं, that I have not written every time it is so, but generally in presence of catalyst, rate of reaction increases. ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, बट वन बाय वन ओवरव्यू देख ले रहे हैं. नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट पर कैसे डिपेंड करता है हमारा, इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी मैं आपको. द एग्जांपल इज ऑफ NO plus O2 gives NO2, बैलेंस कर लेंगे. इन द सिमिलर मैनर CO plus O2 gives CO2, बैलेंस कर लेंगे.
दोनों रिएक्शंस कैसी दिखाई दे रही है हम लोगों को? सेम दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब हमारे अकॉर्डिंग तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होना चाहिए? एक जैसा ही होना चाहिए। बट बेसिकली व्हाट इज बीन ऑब्जर्व दैट दिस रिएक्शन इज फास्ट व्हाइल दिस रिएक्शन इज स्लो. Why it is so? Because the rate of reaction depend on the nature of reactant. Means is that for the formation of NO2 and CO2, first there will be the breakage of the bonds between NO and O2 and CO and O2. ठीक है, यानी during the reaction there would be the breakage of the bond initially, है ना, and for that the energy required, there will be the energy required for the breakage of the bond, and when the new bond would be formed in the form of NO2 or CO2, there would be the amount of energy released. So in both the cases the amount of energy required and amount of energy released would be different. That's why the rate of reaction would also be different. So like this it depends on the nature of reactant, क्योंकि नेचर रिएक्टेंट का जैसा होगा, किसी के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर होगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, किसी के लिए कम होगी. तो ऑन द बेसिस आवर रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी फास्ट और स्लो. नाउ लेट्स सी द लास्ट फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. इट इज बेसिकली अबाउट द फोटोकेमिकल रिएक्शंस. Basically what I have written is exposure to radiation. The photochemical reactions are that reaction that is being influenced. उनका rate of reaction किस बात पर depend करता है? On the sunlight. ठीक है, ये reactions जो कि dark में नहीं होती, sunlight की presence में होती हैं. As we can take the example of halogenation of methane. ठीक है, यहाँ हम क्या लिखा करते थे? HNO. क्लास 11th में पढ़ी है हमने. मिथाइल क्लोराइड फॉर्म हो जाता है और HCl फॉर्म होता है हमारा. ठीक है, बेसिकली क्या होता है? ये रिएक्शन एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है. इन द सिमिलर मैनर H2 plus Cl2 gives 2HCl. इट इज ऑल्सो अ फोटोकेमिकल रिएक्शन. और इन रिएक्शंस में इट इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ फोटॉन्स. ठीक है, सो द मोर द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट जितनी ज्यादा होगी, the more the intensity of sunlight, more will be the rate of reaction. जितना ज्यादा इसकी इंटेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा. सो दीज आर सम फैक्टर्स जिसके बारे में हमने जस्ट एक ओवरव्यू ले लिया. ठीक है, अब हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म को. एक बार बहुत जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. कंसंट्रेशन पर किस तरीके से डिपेंड करता है? क्योंकि इंक्रीज करने पे कंसंट्रेशन को नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है. मींस वी कैन से ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज द रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी इंक्रीज्ड. द नेक्स्ट इज द टेम्परेचर. सो व्हाट इज बीन ऑब्जर्व्ड? वैसे तो सीधी सी बात है, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, और जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा. लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया कि हम जैसे जैसे 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करते जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल हो जाता है. द नेक्स्ट इज सरफेस एरिया. सो इफ द मोर द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज, इफ इट इज सॉलिड और द कैटलिस्ट इज सॉलिड, ठीक है, द मोर वुड बी द रेट ऑफ रिएक्शन. जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया कि जिंक यहाँ पर हम क्यों पीस के फॉर्म में नहीं लेते, क्यों लंप नहीं लेते, ग्रेन्युलर लेते हैं. ये हम लोग कैटलिस्ट में भी पढ़ चुके हैं. ठीक है ना, सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं कि हम फाइनली डिवाइडेड लेते हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और हमारी जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाती है. व्हाट अबाउट द कैटलिस्ट? कैटलिस्ट बेसिकली जनरली वी यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. नेचर ऑफ रिएक्टेंट मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to break the bond and the amount of energy released to form the bond. इस बात पर हमारा rate of reaction depend करता है. और amount of energy कितनी require पड़ेगी ये depend करता है किस बात पर? हमारे nature of reactant पर. ठीक है, last one, exposure to the radiation. It is basically about the photochemical reactions. कि हमारी photochemical reactions में जितना intensity of sunlight होगा उतना ही rate of reaction बढ़ जाएगा, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द फोटॉन्स, क्योंकि ये रिएक्शंस डार्क में नहीं होती, सनलाइट में होती हैं. सो दीज आर द फैक्टर्स
जिनमें से आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, सो कंसंट्रेशन की डिटेल में बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत जल्दी से। सो कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो चैप्टर के स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो रेट होता है वो किस तरीके से कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक साथ देख लेते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए। इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टाइम एंड कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन एंड मोल पर लीटर। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्टेंट, तो मैंने आपसे कहा था कि जब टाइम जीरो होता है, व्हेन t इज इक्वल टू जीरो, हमारे पास सिर्फ किसका कंसंट्रेशन होता है, रिएक्टिंग स्पीसीज का। ठीक है, सो जब रिएक्टिंग स्पीसीज का कंसंट्रेशन मान लीजिए ये है, तो विद द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज वुड बी डिक्रीज्ड। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स कांस्टेंट, हम लोगों ने देखा था। तो ये ग्राफ किसके रेस्पेक्ट में था, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। रिएक्टेंट का हम क्या देखते हैं कि विद द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, विद द प्रोग्रेस ऑफ द टाइम, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज जनरली डिक्रीजेस। एंड व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, इनिशियली जब t इज इक्वल टू जीरो है तो हमारा प्रोडक्ट नहीं होता है, बट विद द इंक्रीज इन टाइम और विद द पैसेज ऑफ अ रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट वुड बी इंक्रीज्ड। तो हम बेसिकली क्या देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, क्लियर होगा सबको। ठीक है, नाउ लेट्स सी, हम लोगों ने क्लास 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था। दैट वाज अबाउट व्हाट, दैट वाज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन रेट एंड द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। अगर आपको ध्यान हो तो ये किसके बारे में था, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टू द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने बताया था, देवर गर्डबर्ग एंड वेट, विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोगों ने पढ़ रखा है, एंड एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देन वी विल कंपेयर अबाउट द रेट लॉ एक्सप्रेशन टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन ले लेती हूं मैं, एक जनरल रिएक्शन ले लेती हूं, AA प्लस BB प्लस CC गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, इस रिएक्शन को देख के हमें क्या पता चल रहा है, दैट these are the stoichiometric coefficient, है ना, ये क्या है, stoichiometric coefficients हैं in the balanced chemical reaction, जिससे हम ये बता सकते हैं कि कितने moles of reactant consume होकर कितने mole of product form करते हैं। Basically we can say that A mole of A reacting species, B mole of B reacting species, C mole of C reacting species will give the product. So when we apply the law of mass action, law of mass action हमारा क्या कहता है, it says that rate, small r से represent कर देते हैं, rate is directly proportional to the products, the product of molar concentration of reacting species। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। समझ रहे हैं मेरी बात, प्रोडक्ट का मतलब इनके मल्टीप्लिकेशन के, इनकी मोलर कंसंट्रेशन की एक्टिव मासेस के। ठीक है, हम लोग एक्टिव मास वर्ड का यूज किया करते थे ना, और रिप्रेजेंट इसको स्क्वायर ब्रैकेट से किया करते थे। सो द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज raised to the power its
stoichiometric coefficient raised to the power its stoichiometric coefficients in a balanced chemical equation at a particular temperature. या आप ऐसा भी कह सकते हो that at a constant temperature rate of a reaction is directly proportional to the product of the molar concentrations of reacting species raised to the power stoichiometric coefficient of a balanced chemical equation. Yes, that we have studied. हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है. अब ये हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते थे और यहाँ पर क्या रख देते थे, एक कांस्टेंट k रख देते थे, ठीक है. एंड then active mass of A raised to the power A, active mass of B raised to the power B, active mass of C raised to the power C. Here K is our rate constant. K क्या होता था हमारा, rate constant होता था. R is the rate of reaction, ठीक है. ये क्या है, इनकी मोलर कंसंट्रेशंस हैं. 3 स्पीसीज हमने ली हुई है, तीनों की मोलर कंसंट्रेशन है. These are the stoichiometric coefficient. यही हम लोगों ने पढ़ा है. What about the rate constant? अगर मैं rate constant को हम velocity constant भी कहते हैं, इसको हम velocity constant भी कहते हैं. So ये तो हो गया law of mass action, ये rate according to Goldberg and Veitch. But what about the actual picture? ठीक है, what is the actual thing? Basically experimentally it has been observed. Experimentally क्या observe किया गया, that rate of reaction it is not compulsorily be depend on all the concentration term, that is the stoichiometric coefficient of the reacting species. What I mean to say, experimentally बेटा ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जरूरी नहीं है कि एक कंसंट्रेशन टर्म पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबल हो किसी भी रिएक्शन के रेट के लिए, या बी का पूरा बी कंसंट्रेशन टर्म पूरा रेस्पॉन्सिबल हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है. सी का पूरा सी कंसंट्रेशन टर्म हो, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है. तो हम यहाँ क्या मान के चल सकते हैं कि इसके लिए, इसी रिएक्शन के लिए जो हमारा रेट है वो डिपेंड करता है सपोज ए की पी कंसंट्रेशन टर्म पे, मतलब इसके कुछ पार्ट पे डिपेंड करता है. अगर इसकी वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ 5 है तो वो 5 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन 2 ओनली, ठीक है. सो आई हैव रिटन इट पी, मैंने इसको क्या मान लिया, पी मान लिया. इसी तरीके से बी के किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, क्यू कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड कर रहा है, और सी के किस पर डिपेंड कर रहा है, आर कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड कर रहा है. आर यू गेटिंग मी? ठीक है. सो अगर मैं पर्टिकुलरली इस रिएक्शन को देखूं तो रेट ऑफ रिएक्शन वो पूरा का पूरा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर नहीं डिपेंड कर रहा, बल्कि उसके कुछ पार्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है. तो इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द रेट लॉ एक्सप्रेशन. इसको हम क्या कहते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं. सो ये क्लियर हो गई बात कि लॉ ऑफ मास एक्शन तो बेसिकली हमारा क्या कहता था, ये एक थ्योरेटिकल टर्म था. थ्योरेटिकल टर्म था, ये मान के चल रहे थे कि हमारी कोई भी रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप में हो जाती है. बेसिकली क्या मान के चल रहे थे कि हमारी कोई भी रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो जाती है, और यहाँ पर जो हमारा रेट है वो मोलर कंसंट्रेशन रेज टू द पावर उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक. बट बेसिकली जब एक्सपेरिमेंटली नोटिस किया गया तो ये नोटिस किया गया कि ऐसा तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि वो सारे के सारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट टर्म पर डिपेंड करती हो, लेकिन इट इज नॉट कंपल्सरी. ये जरूरी नहीं है कि हर केस में या हर रिएक्शन के केस में सारा का सारा स्टोइकियोमेट्रिक टर्म पर डिपेंडेंसी हो. ये भी हो सकता है कि उसका कोई पर्टिकुलर पार्ट ही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है.
तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने सोचा कि रिएक्शन, ये थ्योरेटिकल जो है, इन्होंने हाइपोथेटिकल एक लॉ बना दिया, तो उसमें उन्होंने मान के चला कि ये सारे के सारे जो रिएक्टिंग स्पीसीज के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो सारे कोलाइड करते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं कहूँ यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, तो ये 25 मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे। तो क्या 25 मॉलिक्यूल्स एक साथ ही कोलाइड कर जाएंगे? नहीं कोलाइड करेंगे ना, एक साथ तो कोलाइड नहीं करेंगे। तो हमारा बेसिकली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा? या वो 25 मॉलिक्यूल से क्या एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी? नो, इट इज नॉट सो। ऐसा नहीं होता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें और ज्यादा समझ में आएगा आपको। इफ आई से NO2 प्लस F2 गिव्स NO2F, ठीक है। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो इसको 2 करना पड़ेगा, इसको भी 2 करना पड़ेगा। तो अभी मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, जब मैं लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करूंगी तो रेट इज इक्वल टू K एक्टिव मास ऑफ NO2 रेज टू द पावर 2 एंड एक्टिव मास ऑफ F2 रेज टू द पावर 1। 1 को हम लिखते ही नहीं है। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू रेट ऑफ रिएक्शन या एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन ये होना चाहिए। बट एग्जैक्टली क्या होता है, जब हम एक्सपेरिमेंटली नोटिस करते हैं तो एक्सपेरिमेंटली R इज इक्वल टू K एक्टिव मास ऑफ NO2 एंड एक्टिव मास ऑफ F2। ये इसके कंप्लीटली स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करता। सो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है, इसलिए ऐसा होता है। यहाँ पे हमें क्या दिख रही है? सिंगल स्टेप दिखाई दे रहा है, हमारा फाइनल स्टेप दिखाई दे रहा है। उसके बेसिस पे हमने लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया, रेट की डिपेंडेंसी बता दी। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। किस तरीके से होती है? सो इट इज NO2 प्लस F2 फॉर्म NO2F प्लस F and the second step is NO2F ठीक है। हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? NO2 प्लस F2 gives NO2F प्लस F एंड फर्दर ये रिएक्शन होगी NO2 प्लस F gives NO2F। तो ये रिएक्शन इन 2 स्टेप्स में होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम सम करेंगे इसका तो ये F से F कैंसिल हो जाएगा, देन 2NO2 प्लस F2 gives 2NO2F। तो हमारा यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो इन दोनों का सम लिखा हुआ है। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन बेसिकली। सो यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है वो ये वाला स्टेप हमारा क्या होता है? स्लो स्टेप होता है। और ये स्टेप क्या होता है? फास्ट स्टेप होता है। और यही स्टेप हमारा क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आपको क्या ध्यान रखना है? जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप होता है, जो हमारा स्लो स्टेप होता है किसी भी जब हमारी कोई भी रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स में होती है, जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप होता है वो हमारा क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? जो हमारा स्लो स्टेप है वो ये है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि NO2 का 1 कंसंट्रेशन टर्म ही रेट को डिसाइड करता है, क्योंकि फास्ट स्टेप तो इतना जल्दी हो जाता है कि वहां पर कोई डिपेंडेंसी रेट की बनती ही नहीं है। आर यू गेटिंग मी? कोई डिपेंडेंसी बनती ही नहीं है। इसलिए जो हमारा स्लो स्टेप होता है उसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। इसीलिए जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन यानी थ्योरेटिकल व्यू है वो एक्सपेरिमेंटल व्यू से डिफरेंट होता है। आर यू गेटिंग मी? मेरी बात समझ में आ रही है? अभी इसको हम स्लो स्टेप को एक और तरीके से समझ सकते हैं। वैसे तो आपको ये याद ही रखना है कि जो आपका स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग होता है। हम लोगों ने ऑर्गेनिक में भी देखा है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये स्टेप स्लो स्टेप है, तो उसके बेसिस पे हमने कहा कि ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। इसको यूटिलाइज हमने वहां किया था, बट क्योंकि हमने अभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा था तो दैट वाज नॉट वेरी मच क्लियर टू यू ऑल।
बेसिकली एक लाइव एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मैथ बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, आपका मैथ बहुत स्ट्रांग है, आप इजीली मैथ्स कर लेते हो, तो अगर मैंने बाई चांस आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिए, ठीक है, 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिए, तो आपको मोस्ट ऑफ एन आर, यू टेक एन आर टू सॉल्व दैट पेपर। वो 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 आवर लगता है, बट बेसिकली यू नीड अ कैलकुलेटर फॉर दैट, है ना। आपको क्या जरूरत पड़ती है? कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपका मैथ तो वैसे लॉजिक जो लगाते हैं वो तो स्ट्रांग है आपका, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट क्या है आपका, वीक है। नाउ लेट्स सी, अब अगर मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी कि यही 20 क्वेश्चंस आपको विदाउट कैलकुलेटर करने हैं, अब बताइए आप उसे कितनी जल्दी करके देंगे, आपका रेट क्या रहेगा, किस स्पीड से आप कर पाएंगे। सो व्हाट यू विल से, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे मैम पता नहीं, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन तो बहुत वीक है, पता नहीं उसको कैलकुलेशन को करने के लिए हमें कितना टाइम लग जाए। सो यू कांट से यू वुड बी एबल टू फिनिश इट इन 1 आवर। आर यू गेटिंग मी? बात समझ में आ रही है? यानी आपका जो वीक पॉइंट है वो आपका क्या है, स्लोएस्ट स्टेप। समझ रहे हो ना मेरी बात को? वो आपका क्या है, स्लोएस्ट स्टेप है, उस पर बेस्ड है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, उस पर बेस्ड है आपका कि आप कितनी स्पीड से पेपर को सॉल्व कर पाओगे, कितनी जल्दी या कितनी देर में पेपर को सॉल्व कर पाओगे। तो बेसिकली आपकी इसी तरीके से आपकी केमिकल रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप डिसाइड करता है कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। क्योंकि जो फास्ट है, आप लॉजिक तो फास्ट लगा लेते हो, लेकिन भाई कैलकुलेशन में कितना टाइम लगेगा ये आपको पता ही नहीं। तो जब वो पता ही नहीं, तो उसी के बेसिस पर तो आप कहोगे कि मेरा तो इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं कैलकुलेशन कितनी देर में कर लूंगा। अगर मैंने कैलकुलेशन छोड़ दी तो हाँ भाई मैं इस पेपर को 1 आवर से पहले करके दे दूंगा आपको। लेकिन अगर मुझे कैलकुलेशन अपने हाथ से निकालनी पड़ी, करनी पड़ी, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इस बात पर अब डिपेंड करेगा मैम कि मेरा पेपर अब कितनी देर में हो पाएगा। सो बेसिकली किसी भी रिएक्शन के रेट को कौन डिटरमाइन करेगा? स्लोएस्ट स्टेप। क्योंकि फास्ट स्टेप तो इतना जल्दी होगा कि उसके बेसिस पे आप रेट चेक ही नहीं कर सकते हो। गेटिंग मी? सो वी से इट डिपेंड्स ऑन द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। क्लियर हो रही है मेरी बात? बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को? सो बेसिकली अब हम 2 चीजें बता सकते हैं। ये हो गया हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन बेसिकली किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? ठीक है, वो सारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो केवल उन कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड कर रहा है जो कि हम रेट लॉ एक्सप्रेशन में एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर कर लिख रहे हैं। सो रेट लॉ एक्सप्रेशन इज बेसिकली अबाउट that molar concentrations that is being proved, that is being observed during experiments। ठीक है, तो ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। हम ऐसे नहीं बता सकते, अगर मुझसे पूछा जाए किसी भी रिएक्शन को लिख के कि इसका लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर दो इस पर, ठीक है, और फिर बता दो रेट, तब तो मैं बता सकती हूँ। लेकिन अगर कोई रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के लिए मुझसे कह दे, then I would not be able to tell why, because it is एक्सपेरिमेंटली प्रूवन। इसके लिए मुझे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसमें मुझे स्लो स्टेप देखना पड़ेगा, और स्लो स्टेप में जो कंसंट्रेशन टर्म आ रहे होंगे केवल उसी के बेसिस पर आप रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिख पाओगे। ठीक है, अब आती है बात हमारे रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट की। तो रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट जो है हमारा, इसको अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं क्या मान के चलूंगी, दैट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज इज 1 mole per liter, means that would be unity. So I may say rate constant is equal to the rate of reaction when molar concentrations of all the reacting species is considered to be unity. ठीक है, इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। If we are talking about the characteristics of rate constant, तो हम क्या देखेंगे,
K, the more the value of K, more will be the rate of reaction. ठीक है, जितनी ज्यादा वैल्यू K की होगी उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा. नेक्स्ट हम लिख सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, या ऐसे लिख लीजिए एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट यानी K इज फिक्स फॉर अ रिएक्शन. ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी रिएक्शन के लिए K की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है, फिक्स वैल्यू होती है. एंड विद चेंज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करते जाएंगे, द वैल्यू ऑफ K will also change for a particular reaction. समझ में आ रही बात? यानी टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी है. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी रिएक्शन के लिए K का वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो हमारा K का वैल्यू उसी रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा? That would be changed. Next one, it does not depend on concentration, volume, या वॉल्यूम बाद में लिखिए, कंसंट्रेशन, प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. ठीक है, जो K की वैल्यू है वो हमारे रिएक्टिंग स्पीसीज की कंसंट्रेशन, प्रेशर या फिर वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती है. एक लास्ट पॉइंट हमारा रह जाता है, इट्स यूनिट. K का यूनिट, K का यूनिट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ठीक है, उसको मैं शॉर्ट में बता दे रही हूं आपको. जो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, उसमें रिएक्टिंग स्पीसीज के जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स जो है पॉसिबल है, उनका सम क्या कहलाता है? हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है. लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर दिया, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख दिया, तो हमारा जो रिएक्शन का रेट है बेसिकली एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, वो जरूरी नहीं है सारे स्टोइकियोमेट्रिक टर्म्स पर डिपेंड करता हो. तो ये जिस टर्म पर भी डिपेंड करता है उन सारी रिएक्टिंग स्पीसीज का सम क्या कहलाता है? हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. जैसे इस रिएक्शन के लिए अगर मैं ऑर्डर पूछूं तो दैट वुड बी P प्लस Q प्लस R. और यू में राइट कोई भी एक रिएक्शन ले लो, A गिव्स प्रोडक्ट, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ N. ठीक है ना? एंड R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर N. N क्या है? हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. यहाँ जितनी भी रिएक्टिंग स्पीसीज होंगी उनमें से जो हमारा एक्सपेरिमेंटली प्रूवन कंसंट्रेशन टर्म आएगा उनका सम क्या कहलाता है? हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है, जिस पर हमारा रेट डिपेंड करता है. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन. ठीक है, till the time you make notes with the help of this lecture. Thank you.